Hello students. Hello students. How are you all? I hope you are perfectly fine and doing your studies at your home. Students, let me remind you once again that we are discussing English reader and the chapter number 2. The name of that chapter is Skipping Shoes. Okay, firstly I will give you a quick revision which I had taught you on Friday, Saturday and Monday classes. Okay, this is a story about a girl named Kitty who doesn't like to help others. When her mother told her to deliver the message to the cook to make a pie for dinner, she just refused to do it. Okay, उसने तुरंत मना कर दिया. But her shoes, which she has gifted from her mother, take her into the kitchen, and then she has to give the message to the cook. After that, her father told her that she has to go to the post office, and she had to receive letters from there. When she was in the way, she saw a bridge where she wanted to stop and watch a boat, and after that she forgot about the school and also the letters of her father. After that, what happened? The shoes were very the shoes were making very disturbance to her, so she thought that when she returned to home she will put off the shoes from her foot, but she was unable to do it because the shoes just wouldn't come off. Then her mother told her that it was the time for school and she had to go to the school by now, but she was just refused to do it. But her shoes take her to the school instantly. When there was a lunch time, a girl named Dolly fall down the house of corn cobs that she built, and she became very angry to see this. Now she wanted to take revenge from Dolly, and she told her that I will also fall down your cobs. As she took her foot didn't come down. She was very surprised what happened to her. ये देखिए बहुत परेशान हो जाती है कि उसके पैर जो है वो नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं. Then she forgive the Dolly. तभी वो डॉली को उसके किए हुए पे माफ़ी दे देती हैं, माफ़ कर देती हैं, और इसके बाद आफ्टर दैट हर फुट केम डाउन, और उसके बाद उसके पैर नीचे आ जाते हैं. शी वॉज टोटली सरप्राइज टू सी ऑल दीज. ओके, नाउ उसे अब ये रियलाइज़ हो जाता है. नाउ शी अंडरस्टूड दैट व्हेन शी विल बी काइंड, हर shoes will be cooperative, and when she wanted to be naughty, it will be stubborn. जब अगर वो काइंड और दयावान रहेगी तो उसके शूज़ भी उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन अगर वो शरारतपन दिखाएगी तो उसके शूज़ ज़िद्दी हो जाएंगे और वो उसे ऐसा करने नहीं देंगे. नाउ शी अंडरस्टूड ऑल दैट. अब ये सब कुछ समझ गई थी. टू चेक ऑल दिस, she offered the boys to take the ball over the hedge. ओके, जो hedge से ऊपर से होकर जो बॉल चली गई थी, उसने रिक्वेस्ट किया उन बॉयज़ से कि वो उस बॉल को लेकर आएगी. और जब उसने ऐसा कहा, उसने तुरंत अपने पैरों को ऊपर उठाया. देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो एयर में डांस कर रही हो. ओके, The other students were also watching that. The girls were charmed and tried to imitate her, but no one could, and she danced till the
बेल रैंग, और वो तब तक डांस करती रही जब तक कि बेल नहीं बज गई। ओके, अदर्स जो गर्ल्स थी उन्होंने भी इस तरह से इमिटेट करने की कोशिश की, कॉपी करने का कोशिश किया, बट दे कुडंट डू दैट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। किटी ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि बिकॉज शी हैड मैजिकल शूज़। वो ऐसा इसलिए कर पा रही थी क्योंकि उसके पास मैजिकल शूज़ थे, लेकिन अदर गर्ल्स क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि उसके पास मैजिकल शूज़ नहीं थे। ओके, When Kitty reached home, her sister said, "Run and pick some strawberries for lunch after the school time." Now Kitty had reached at home, and her sister demanded her strawberries for the lunch. ओके, यहाँ तक हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था, और आज जो है इस वीडियो लेक्चर में वी विल कवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। जो बची हुई स्टोरी है उसको हम कवर करेंगे। ओके, आई एम टू टायर्ड बट द किटी वॉज टू टायर्ड, but the shoes landed her in the middle of the strawberry bed with one jump. Okay, I'm too tired. जब उसकी सिस्टर ने उससे स्ट्रॉबेरी मांगा तो उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन बट उसके जो शूज़ हैं वो उससे तुरंत स्ट्रॉबेरीज बेड की तरफ लेके चले जाते हैं। वंस द डिश वॉज फिल्ड, किटी वॉन्टेड टू स्टे। जब डिश जो है वो फिल हो जाती है, किटी वहाँ पे रुकना चाहती है एंड ईट अ फ्यू स्ट्रॉबेरीज, और कुछ स्ट्रॉबेरीज खाना चाहती है, बट शी वॉज जिप्ड अवे इनटू द डाइनिंग रूम। लेकिन वो तुरंत जो है उसकी शूज़ की वजह से उसे तुरंत डाइनिंग रूम में आना पड़ता है। वो शूज़ उसको डाइनिंग टेबल तक लेके चले जाते हैं। इट इज़ डिलाइटेड टू हैव अ क्विक इरैंड गर्ल, सेड हर मदर। What did the mother say? The mother said that it is delightful to have a quick errand girl. Errand girl, what is the meaning of a errand girl? A girl who does a स्मॉल जॉब। ओके, जो छोटे छोटे घर पे काम कर देती है। यानी अगर जैसे आपके घर पे ऐसे कोई बच्चे होंगे छोटे, या भाई होंगे या बहन होंगे, जो आपके छोटे छोटे कामों को तुरंत कर देते हैं, तो इन्हें इरैंड गर्ल या इरैंड बॉय कहते हैं। ओके, इट इज़ डिलाइटफुल टू हैव अ क्विक इरैंड गर्ल। ऐसे इरैंड गर्ल को देखकर, मतलब कि जो छोटे छोटे कामों को तुरंत कर दे, ऐसे गर्ल को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डिलाइट मीन्स बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। विल यू कैरी अ फ्यू बंडल टू सम पुअर पीपल लेटर? तब उसकी मदर ने उससे पूछा, हर मदर आस्क्ड हर इफ़ शी वुड कैरी अ फ्यू बंडल टू सम पुअर पीपल लेटर, कि बाद में क्या तुम गरीब लोगों के लिए ये बंडल जो है लेके जाओगी? Must I? Sighed Kitty, while the shoes tapped under the table, reminding her that she must, whether she liked it or not. क्या मुझे ये करना है? किटी ने ऐसा सोचा है, लेकिन जब उसके शूज़ ने उसे टैप किया, थोड़ा सा उसे जगाने की कोशिश की, उसे याद आया कि अगर उसकी इच्छा है तो भी उसे ये काम करना होगा, अगर उसकी इच्छा नहीं है तब भी उसे ये काम करना होगा। इट वुड बी काइंड बट यू मे डू एज यू चूज़, रिप्लाइड ममा। व्हाट डिड मम्मा रिप्लाई? मम्मा ने रिप्लाई किया कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम इस काम को करो, अगर नहीं है तो मत करो। किटी सैट वेरी स्टिल। किटी जो है बिना कुछ कहे वहाँ पे बैठी थी। शी वॉज डिसाइडिंग वेदर शी वुड गो प्लीजेंटली और बी विस्ड अगेन अगेंस्ट हर विल। अगर वो या तो उसको अपनी इच्छा से जाना पड़ेगा, या फिर उसको अपनी बिना इच्छा के भी वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके मैजिकल शूज़ उसे तब भी वहाँ पर लेकर जाएंगे, इसलिए वो अपनी इच्छा से रेडी हो जाती है। शी फाइनली सेड चीयरफुली, आई विल गो मम्मा, कि मैं जाऊँगी, एंड लेटर मे आई कम बैक थ्रू फेयरीलैंड। तब वो उससे परमिशन मांगती है कि क्या मैं बंडल्स को डिलीवर करने के बाद क्या फेरीलैंड में जा सकती हूँ? द प्लेस वेयर द फर्न्स ग्रो इन द फॉरेस्ट, जहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे बड़े बड़े जो फॉर्न्स हैं, जो कटीली झाड़ियाँ हैं वहाँ पे उगती हैं। क्या मैं उस प्लेस पे जा सकती हूँ?
परमिशन वॉज हैप्पीली ग्रांटेड, उसे परमिशन मिल जाती है। एंड किटी ट्रॉटेड अवे विद अ बास्केट इन वन हैंड एंड अ बंडल इन द अदर। किटी अपने हाथ में एक बंडल लेती है और एक हाथ में बास्केट लेकर चल देती है। व्हेन शी हैड गिवन द सिक baby some clothes, the lame girl books, and the old woman money, she felt happy as people always do when they do kind things. ओके वो वहाँ पे क्या क्या देती है, सिक बॉय को क्लॉथ्स देती है, लेम गर्ल को बुक्स देती है एंड ओल्ड वुमेन को मनी देती है। और उसे बहुत ज़्यादा शी फेल्ट हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। ऐसे जैसे कि अदर लोग जो है वो अच्छे काम करने के बाद जैसे उन्हें खुशी होती है, वैसे ही सेम किटी को भी खुशी होती है। किटी सून रीच्ड फेयरी लैंड, किटी तुरंत जो है फेयरी लैंड पहुंच जाती है। विच वॉज फिल्ड विद वुड फ्लावर्स, किटी विश टू रेस्ट हर एक्किंग फीट, उसके पैरों में दर्द हो रहा था, वो वहाँ पे रेस्ट करना चाहती थी। एंड इमीडिएटली हर फीट फोल्डेड अंडर हर एंड शी सैट ऑन कुशन ऑफ मॉस, और वो वहाँ पे मॉस के ऊपर बैठ जाती है। देन विद द थर्ड अ लार्ज ब्लैक क्रिकेट लैंडेड बिसाइड हर स्टेयरिंग एट हर क्यूरियसली। ओके, तभी वहाँ पर एक क्रिकेट मतलब अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, उसका एक झुंड जो है वहाँ पर आ जाता है और किटी की तरफ देखने लगता है। एंड ही आस्क्ड, हेलो आर यू रिलेटेड टू माई कज़न ग्रास शॉपर, क्या तुम मेरे कज़न ग्रास शॉपर से रिलेटेड हो, क्या उसकी तुम रिलेटिव हो। यू टुक सच लॉन्ग लीप्स जस्ट लाइक हिम, तुम उसकी तरह इतनी तेज़ कूद सकती हो, उछल सकती हो, क्या तुम मेरे कज़न ग्रास शॉपर के जैसे हो। क्रॉड द क्रिकेट ने पूछा। आई एम नॉट अ ग्रास शॉपर, मैं ग्रास शॉपर नहीं हूँ, बट आई हैव ऑन मैजिकल शूज़ टुडे, लेकिन मुझे आज मैजिकल शूज़ मिले हैं। आंसर्ड किटी सरप्राइज दैट शी अंडरस्टूड व्हाट द क्रिकेट सेड। ओके, वो ये देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, वो कैसे क्रिकेट की बातों को समझ पा रही है। ओ इट्स मिड समर डे एंड फेयरीज प्ले प्रैंक्स टुडे, ही सेड, उसने क्या कहा कि आज जो है मिड समर डे है। मिड समर क्या है, मिड समर डे 24 जून को होता है। ओके, जिस दिन जो है कुछ मैजिकल इंसिडेंट जो है उस दिन होते हैं। ओके, द मैजिक विल स्टे टिल सनसेट, जब तक सनसेट होगा, ओके जब तक सनसेट होगा तब तक ये मैजिकल रहेगा और इसके बाद ये डिसअपियर हो जाएगा। एंड देन द फन विल बी ओवर, और तब ये फन समाप्त हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द शूज़ यू कैन अंडरस्टैंड मी एंड ऑल दोज स्क्वायरल्स फ्रॉग्स एंड बटरफ्लाइज, और इसी शूज़ की वजह से तुम्हें स्क्वायरल की, फ्रॉग्स की, बटरफ्लाइज की एंड ऑल्सो मी, और मेरी भी तुम्हें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और इट वॉज जस्ट ऑफ दीज मैजिकल शूज़। Okay, that's it for the today students. In the next video lecture, we will cover the remaining part of the story. Till then, you will practice it at your home and you will revise the hard meaning of this chapter. Goodbye students.